जी, आज का लेक्चर हम पाकिस्तान रशिया रिलेशंस पे करेंगे। सबसे पहले आपको इसके बैकग्राउंड में बताने की ज़रूरत है कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान रशिया का थोड़ा सा हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे, क्या डेवलपमेंट्स थी। फिर उसके बाद इस रिलेशन का अप्रेजल होगा, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको कहते हैं, जिसमें हम पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे करंटली क्या हैं। फिर उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस जो जिसको चैलेंजेस भी कहते हैं वो क्या हैं। फिर इसके बाद इसका वे फॉरवर्ड देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस वाले ही शामिल हो जाएंगे। अब अगर हम देखें हमारा रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होता है रशिया के साथ, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर किसी ने एलिस इन द वंडरलैंड नोवेल रीड किया है, तो जिस तरह ये कहानी स्टार्ट होती है कि द गर्ल वाज नॉट having any information or any kind of idea okay, which path she was going to take. So similar was the situation with Pakistan. At the start, at the inception, we got two invitations. The first invitation to our Prime Minister was offered by this person, Stalin, and he was basically leading USSR, and we basically accepted that invitation. But at the same time, we got the invitation from Washington. So हमारे जो वेस्टवर्ड जो हमारा ओल्ड इंपीरियल कनेक्शन थे, वेस्ट लीनिंग हमारी आइडियोलॉजी थी, उसके मुताबिक हमने जो है वो वाशिंगटन के साथ पहले इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आपने बिल्कुल मॉस्को के इनविटेशन को साइडलाइन कर दिया। सो दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डिड इन आवर रिलेशनशिप। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ये पैराग्राफ कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉस्टाइल रिलेशंस एंड नेगेटिव फॉरेन पॉलिसी postures towards each other, Pakistan and Russia have acknowledged the need for pragmatic yet friendly relations with different states, globally in general and regionally in particular. They have realized that bilateral cooperation is extremely necessary to achieve their national security and foreign policy objectives. Russia, realizing its global power status and its renewed drive to regain its past glorified position in international affairs, has made big changes in its foreign policy. It has also adopted a new hostile, holistic foreign policy orientation towards South Asia while abandoning the country-specific policy that it had in the past. जिसकी वजह से पाकिस्तान is also getting good like value in the Russian foreign policy. Pakistan, on the other hand, after many tests and trial, we have come to realize that it cannot depend on a single country, which is in the form of USA, in particular, to achieve our interest. Okay? So we need to expand its in the list of countries on whom it can depend on for support and have good relations. Over the last decade, Pakistan and Russia bilateral relationship have commenced on the path of improvement, which both countries entering into multiple deals of cooperation and integration, especially in the domain of military, politics, and economics. Now it is the high time that Pakistan and Russia realize and accept the realities of international relations, learn from their past, and further build upon the positive developments to solidify their bilateral relations for mutual benefits and for the good of the entire region. तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने पूरा इसको समराइज किया कि जी दोनों इन कंट्रीज के दरमियान एक होस्टाइल रिलेशन था, एक रिलेशन वर्किंग रिलेशन नहीं रहा इन द पास्ट हिस्ट्री, but both countries have now changed their perception of each other, have changed their foreign policy directions, and now both countries want to have a good relation because they wanted and they still want to diversify their options. Russia, on one path, wants to get its back status, like its previous status as a regional superpower back. उसके लिए उसको मल्टीपल कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस चाहिए. It cannot simply rely on one country like India and can ignore other countries in this region. It wants to maintain good relations with all countries in this region. Like Central Asia already उसके पास है, सपोर्ट किया जाता है उसको, रशिया को मोस्टली. चाइना के साथ उसके गुड रिलेशंस हैं. देन देयर कम्स मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया. साउथ एशिया के अंदर इंडिया के साथ उसके ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. Then आपके पास पाकिस्तान बचता है, which is a nuclear armed state and a very important state in this region, is situated in a very good geographical position. तो ये सारी चीजें रशिया के जो है वो फेवर में जाती हैं, and Russia wants to have good relations with these countries.
पाकिस्तान ने भी इसको एक्नॉलेज किया रिसेंटली कि पाकिस्तान कैन नॉट रिलाई ऑन वन कंट्री लाइक यूएसए, जो पाकिस्तान को यूज करता है और फिर पाकिस्तान को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ नीड। सो पाकिस्तान वांट्स के अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई कर सके, मल्टीपल ऑप्शंस लेके आ सके अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वजह से पाकिस्तान के लिए रशिया के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। अब अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें और यूएसएसआर रिलेशंस देखें तो हमारे रिलेशंस वीक रहे हैं इंसेप्शन से ही, स्टार्ट से ही। उसकी रीजंस आपके सामने देखी, आपने उसको देखा कि जी हमने शुरू में क्या किया, जो रशिया के साथ एक ताल्लुकात बेहतर करने की बजाय हमने क्या किया, हमने उसको छोड़ दिया और हमने वेस्टवर्ड लीनियंसी दिखाई। इसके बाद हमने जो 1950s में डिफेंस ट्रीटी की, किसके साथ, यूएस के साथ, सीटो एंड सेंटो। सीटो बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर काउंटर कर सके कम्युनिस्ट इंटरेस्ट को, कम्युनिस्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को, और इसके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। अब इसमें जब ये शामिल किया गया तो बेसिकली ये बनाने का पर्पस इन ट्रीटीज का, यूएस का, वो यही था कि कम्युनिस्ट रिजाइम्स को इन कंट्रीज के ऊपर हैवी ना होने दिया जाए, उसकी आइडियोलॉजी को हैवी ना होना दिया जाए। इस वजह से उसको क्या किया गया, उसने ये ट्रीटीज बनाई और पाकिस्तान भी इसका पार्ट बना। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली हम स्टार्ट से ही रशिया के, यूएसएसआर के अगेंस्ट चले गए। इसका रशिया ने बहुत ज्यादा उसको सदमा हुआ कि पाकिस्तान ने सीटा ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर हो गई है कि बाइपोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान किसके साथ था। फिर उसके बाद हमारी कोल्ड वॉर के अंदर आप देखें लिमिटेड हमारी एंगेजमेंट रही। मेजर हमारी जो थी कंट्रीब्यूशन, उसने स्टील मिल और ओजीडीसीएल यानी स्टील मिल बनाने में रशिया ने आपकी हेल्प की और रशिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई। अगर एमसीयू आता है कि स्टील मिल को किस कंट्री ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो वो रशिया है। हमारा कोई डिफेंस रिलेशन इसके साथ नहीं रहा, यूएस के साथ हम इंक्लाइंड रहे हैं। उसके बाद इंडिया सोवियत कोऑपरेशन 1971, और इंडिया ने जिस तरह मुफ्ती बाहिनी को यूज किया, और देयर आर रिपोर्ट्स, देयर आर एलिगेशंस के उनको ट्रेन किया गया यूएसएसआर की तरफ से, तो ये बेसिकली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भुट्टो विजिटेड मॉस्को इन 1972 1974 कि अपने रिलेशंस को बेहतर कर सके यूएसएसआर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने देख लिया कि यूएस के ऊपर रिलायंस नहीं है, तो हम डाइवर्सिफाई करें। हमने एक कोशिश इस वक्त की। फिर उसके बाद जब सोवियत ने इन्वेड किया 1979 में, तो पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल दोबारा से खतरनाक हो गई। जो इससे पहले हमने सोचा था कि हम सोवियत के साथ एक अच्छा रिलेशन, हमने सोचा था कि सोवियत के साथ एक अच्छा रिलेशन लेके आएंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में हम कामयाब नहीं रहे। किस वजह से कामयाब नहीं रहे, क्योंकि एक जो आपके पास एक इंसिडेंट हुआ 1979 का, सोवियत की इन्वेजन इन अफगानिस्तान, उसकी वजह से आपका भी एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो जाता है और उसमें फिर आप ये फैसला करते हैं कि आपने यूएसएसआर को डिफीट करना है, बट आप डायरेक्ट उसके पास नहीं जाते कन्फ्रंटेशन में। आप मुजाहिदीन को तैयार करते हैं, तालिबान को तैयार करते हैं, और वो फिर आगे जाके आपकी जो है ना उसमें सपोर्ट करता है। और इससे आप देखते हैं कि आप बेसिकली आपके इंटरेस्ट रशिया के साथ शुरू में ही 1979 में दोबारा डाइवर्ज कर गए। पाकिस्तान ने फिर 1996 में रिकग्नाइज किया तालिबान को, और ये भी जो है वो अच्छा मैसेज नहीं गया रशिया के लिए, क्योंकि रशिया समझता था कि जी तालिबान एक एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडियोलॉजी है, और वो अपनी आइडियोलॉजी सेंट्रल एशियन स्टेट्स कौन कौन सी हैं, यही उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, इनके ऊपर भी अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड होंगी। और वो ये जो कंट्रीज हैं ये पहले यूएसएसआर के अंदर आती थी, तो बड़ा इंटरेस्ट था रशिया को इन कंट्रीज के ऊपर। और अभी भी ये रशिया समझता है कि दिस इज माय बैकग्राउंड एंड दिस इज टोटली माय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दीज कंट्रीज। तो ये रशिया के लिए एक अच्छी चीज दोबारा नहीं थी। फिर जब 9/11 होता है, वॉर ऑन तालिबान स्टार्ट हो जाता है, तो फिर भी हमारे रिलेशन इतने बेहतर नहीं रहते। मुशर्रफ विजिट करता है 2003 में रशिया का, लेकिन एज सच कोई वर्किंग हमारा रिलेशन यहाँ से नहीं निकलता। 2010 के बाद हमारा रिलेशन रशिया के साथ बेहतर होना शुरू होता है। तो तकरीबन एक डेकेड हो गया जिसमें हमने
पॉजिटिव जो है वो स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव आवर रिलेशन विद रशिया, जिसमें रशिया डिफेंस मिनिस्टर का विजिट था 2014, फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स हमने की 2016 में, जिसको ध्रुजबा कहते हैं, फ्रेंडशिप ड्रिल। ध्रुजबा इज अ रशियन वर्ड, उसका मतलब है फ्रेंडशिप ड्रिल्स। ये हर 2 साल बाद की जाती हैं। फिर उसके बाद 2017 के अंदर रशिया ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप थी एससीओ के अंदर उसको सपोर्ट किया, और इसीलिए हम एससीओ का जो है वो समिट करवाने जा रहे हैं, और इसमें भी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जी जिनपिंग करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तान इसमें अपनी डिप्लोमेसी को बहुत एक पोर्ट्रे कर सकता है, कश्मीर का इशू रेज कर सकता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट के ऊपर हम इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और ये पॉसिबल हुआ रशिया की वजह से और चाइना की वजह से। फिर एक और, रशिया ने रिसेंटली पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कि बेसिकली जिसकी वजह से पाकिस्तान जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, न्यूक्लियर जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं उसकी ट्रांसफर की जाती है, ट्रेड की जाती है, तो रशिया ने सपोर्ट किया कि पाकिस्तान भी इसका मेंबर बन सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कंसिडरिंग कि जी पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहता है, और पाकिस्तान जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट करना चाहता है इंडिया के साथ, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये चीजें हमने देखी, कुछ रिसेंट हिस्ट्री देखी, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम की एरियाज ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं, की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखते हैं इस रिलेशनशिप में। सबसे पहला, ओके दिस इज, वेट, यहाँ पे आ जाते हैं। इसको हमने, मैं इन स्लाइड्स को थोड़ा सा इसको ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी, इट्स नाउ डन। ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि किस तरह हमारा जो है वो रिलेशनशिप जाएगा आगे। अब अगर हम की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखते हैं, आई एम बैक, आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? अगर हम की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, और इसके अलावा आप देखते हैं कि आपके पास सोशल एंड कल्चरल एरियाज के अंदर कोऑपरेशन है। अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखें तो इतनी एसेट्स हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन रशिया के साथ या यूएसएसआर के साथ नहीं रही। आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया 1991 में बना नहीं, उससे पहले ये यूएसएसआर था, उससे पहले दोबारा रशिया था, ठीक है। तो ये यूएसएसआर के बाद दोबारा रशिया बना, तो जहां पे यूएसएसआर हो
वो भी सेम है, रशिया वो भी सेम है। आपने ये नहीं कहना कि क्या यूएसएसआर को सेपरेट कंट्री आ गया, इट्स द सेम थिंग। 1950s में हमने यूएसएसआर से कॉटन, जूट जो थी वो इंपोर्ट की, लेदर इंपोर्ट की, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कि 1960s में उसने आपको इन्वेस्टमेंट की आपकी स्टील मिल बनाने में या ओजीडीसीएल की डेवलपमेंट। इसके अलावा हमारे मेन इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं रहे। पोस्ट 9/11 के बाद फर्दर इकोनॉमिक एंगेजमेंट हमारे इंक्रीज होते हैं। आप देखें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है रशिया के साथ 2019 में फर्दर इंक्रीज हुई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज होती हैं फर्दर। सेकंड लेट मी टेंड अ कॉल। अच्छा जी, अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो आपने इसमें इतना ज्यादा हमारे पास इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं थी इसकी शुरू में। हमारी आपने ये देख लेनी है कि ट्रेड इंक्रीज हुई है फर्दर रशिया के साथ। रशिया इट इज अ ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर, तो हमें इसमें पार्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के लिए उसने $2 बिलियन की ऑफर की है। और ये हमारा जो है री इन्विग्रेटेड प्रोजेक्ट टू डिलीवर गैस फ्रॉम कराची एंड गवादर टू लाहौर। तो जो हमारा नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन में, उसमें इसने इन्वेस्टमेंट की जो है वो ऑफर किया और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान रशिया रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा अभी अगर हम देखें तो बायलेटरल ट्रेड अभी करंटली लास्ट ईयर हमारी इसके साथ रशिया के साथ नियरली $1 बिलियन की है, विच कैन बी इंक्रीज। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट ईयर हमने जो है वो रिसीव करना शुरू किया डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर चाइना एंड इंडिया स्टार्टेड टेकिंग रशियन डिस्काउंटेड ऑयल। ठीक है। 2015 पाकिस्तान स्ट्रीम प्रोजेक्ट पाइपलाइन बिटवीन लाहौर एंड कराची रिमेन्स स्टिल अनइम्प्लीमेंटेड, डिसअपॉइंटेड मॉस्को। सो दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर रशिया, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान रशिया ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। डिफेंस के साथ अगर हम देखते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन देखते हैं, तो 1969 में रशिया ने मैवरिक हेलीकॉप्टर हमें दिए। ठीक है। उसके बाद रशियन डिफेंस मिनिस्टर आए आपके पास 2014 में, M135 ये हेलीकॉप्टर रशिया ने आपको दिए 2015 में। 2016 से आपने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट की रशिया के साथ। ठीक है। नेवल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं अमान, और एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं ध्रुजबा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें आप रशिया पाकिस्तान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है ऑन कंबाटिंग टेररिज्म में। और इसके अलावा पाकिस्तान का इसके एज सच कोई जो है वो मेन रिलेशन नहीं है डिफेंस में। तो 3-4 चीजें आ जाती हैं। एक आपकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं आर्मी के लिहाज से। एक आपका जो इंपोर्ट है MI-35 हेलीकॉप्टर्स की, मैवरिक हेलीकॉप्टर आपने जो है रशिया से लिए। इसके अलावा ये चीजें पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो एक इंगेजिंग है, या पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो आई कैचिंग है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर यूएस नहीं देता तो मे बी इन फ्यूचर हम रशिया से किसी तरह परचेज कर लें। सो दैट इज वेरी जो है वो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल एंड कल्चर देखें तो इतना हमारा कोई नहीं रहा। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी एंड नमल के दरमियान जो है वो एक एक्सचेंज होता है। इसके अलावा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं हमारे। और इसके अलावा आप इसमें कोई इतनी डीपनिंग टाइज नहीं देखते रशिया के साथ। तो ये ओवरऑल अगर हम डिफरेंट एरियाज के अंदर पार्टनरशिप देखें। अब आ जाती है मेन बात कि क्या फ्यूचर है रशिया पाकिस्तान रिलेशंस का। अभी तक हमने चीजें देखी, तो इसका अगर एनालिसिस करें, क्रिटिकल एनालिसिस, तो क्या बनता है। अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हिस्टोरिकल एनालिसिस में 3 चीजें हैं जो कि बड़ी कांस्टेंट आपको नजर आएंगी पाकिस्तान रशिया रिलेशंस में। सबसे पहली चीज पाकिस्तान की वेस्टवर्ड ओरिएंटेशन। दूसरी चीज पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस और यूएस वर्सेस रशिया थ्रू आउट हिस्ट्री रहा। यस, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर
रशिया जो है यूएस के साथ थोड़ा रिलेशन बेहतर करता है, लेकिन 2001-2 ऑनवर्ड्स जैसे प्यूटन वापस आते हैं, अपनी गवर्नमेंट को फर्दर कंट्रोल करते हैं, तो प्यूटन के और यूएस के रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं। और चूंकि हमारे यूएस के साथ एक क्लाइंटिस्टिक स्टेट के रिलेशंस थे 9/11 के बाद, 1979 के बाद, तो हमने हमेशा से यूएस को प्रेफर किया, और इस वजह से आप देखते हैं कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे। और दिस इज यू इंडिया रशिया नेक्सस इज ऑल्सो अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो इन तीन चीजों पे हमारे रिलेशन जो है ना वो हमेशा से कांस्टेंट रहते हैं। अब अगर क्वेश्चन किया जाए, आप लोगों से पूछूं कि क्यों हमारे जो है ना वो इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं, क्या ग्लोबली ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि पाकिस्तान और रशिया को एक दूसरे के करीब आना पड़ा या आने की जरूरत महसूस हो रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है? कोई इसको एक्सप्लेन करना पसंद करेगा? उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या रिसेंट ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जी हबीब, आप बताइए। सर इसमें जो रिसेंट सर जो वेस्टवर्ल्ड हमारी सर जो एशियन अब सेंचुरी स्टार्ट होने लगी है, तो ग्लोबल जो शिफ्ट आ रहा है वो एशिया की तरफ आ रहा है सर। तो उसमें जो राइज हो रहा है चाइना का सर, और चाइना और रशिया के टाइज आपस में जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हम जब चाइना के कैंप में हैं सर, और वो हमारे साथ बीआरआई वगैरह के प्रोजेक्ट में भी साथ है, तो हमारा सर जो यूएस का क्लाइंट स्टेज वाला स्टेट अब खत्म हो रहा है, तो हमें अब आके बोल के ये बी रियलिस्टिक के हमारे इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हम न्यू मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी मार्केट्स को सर थोड़ा बहुत जो है ना इसको डाइवर्सिफाई कर सके, क्योंकि हमारे साथ यूरोप के साथ भी इतनी अच्छी ट्रेड के हो रहा नहीं एक्सपीरियंस, हमें स्पेशल स्टेटस भी मिला था, हमने उसको भी अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो सर इसकी वजह से अब जो है ये बढ़ रहा है। और सर रशिया की पॉलिसी भी है, वो भी सर वो रिंग ऑफ फायर वाली जो स्ट्रेटजी उसकी है वो बना रहा है, तो उसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर किरदार अदा करता है, तो उनका भी सर हमारी तरफ टेंडेंसी बढ़ रही है। तो यही दो चार चीजें। अच्छा जी, अब इसमें जैसे मैंने करंट अफेयर्स में, अगर आपने वो लेक्चर रीड किया है जो उसमें हैं स्टूडेंट्स, उनको तो समझ आ गई होगी। लेकिन जो पाक अफेयर वाले बिल्कुल हमारे बिगिनर स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक्सप्लेन करूं तो चीज ये है कि वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ चेंज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इन विच नाउ एक स्टेट की डिपेंडेंसी, एक स्टेट की हेजेमनी इज इन चैलेंज। हाउ यूएस इज बीइंग चैलेंज्ड, इट इज बीइंग चैलेंज्ड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट। अगर आप उसका जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस मिलिट्री साइड पे देखें तो रशिया इज थ्रेटनिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, उसको पूरा उसकी हेजेमनी को क्वेश्चन किया गया है कि जी एक उसकी सपोर्ट के बावजूद रशिया इज थ्रेटनिंग इट्स ग्लोबल स्टेटस। इसके अलावा इन मिडल ईस्ट रशिया इंटरेस्ट आर देयर विद सीरिया। सीरिया बशार अल असद को रशिया ने सपोर्ट किया और उसकी अभी भी वहां पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो रशिया एंड चाइना आर वर्किंग क्लोजली विद ईच अदर टू काउंटर यूएस ग्लोबल हेजेमनी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है इन विच दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ सेपरेट करेंसी, अ सेपरेट पैरेलल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरी साइड पे आप देखें एससीओ इज देयर व्हिच इज trying to connect the यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज लाइक ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जिसके अंदर रशिया आता है, एंड एशियन कंट्रीज। यूरेशियन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एशिया और यूरोपियन कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही हैं। एक समिट आपके सामने होने जा रहा है, तो ये ग्लोबल चेंजिंग आ रही है। अब इस ग्लोबल चेंज के अंदर पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसी जगह पे देखता है जहां पे हमने हिस्टोरिकली यूएस के ऊपर रिलाय करके देख लिया, लेकिन हमें इतना खातिर फायदा नहीं हुआ। दूसरी साइड पे करंट अगर हम देखें तो यूएस इज नाउ इंक्लाइनिंग मोर टुवर्ड्स इंडिया विच इज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड आर्ट्स राइवल। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान इज करंटली सपोर्टेड बाय चाइना विच इज बेसिकली क्वेश्चनिंग यूएस हेजेमनी। तो इस पूरी सिचुएशन में देखें तो पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान एक कंट्री के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता इस चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान को मल्टीपल कंट्रीज की जरूरत है, क्योंकि एक कंट्री पे अगर रिलाय करेगा और दूसरी कंट्री उसके अगेंस्ट जाएगी तो पाकिस्तान जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं।
इसलिए रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बनाना बहुत जरूरी है। एक तो ये आपका रीजनल पार्टनर है, ठीक है, रशिया आपको सपोर्ट कर सकता है डिफेंस में, एंटी टेररिज्म में। इसके अलावा अफगानिस्तान की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इसके अलावा चाइना का एक अच्छा पार्टनर है रशिया, तो पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया, दे कैन वर्क क्लोजली विद ईच अदर फॉर रीजनल इंटीग्रेशन। सीपैक का स्कोप इनहांस हो सकता है। इसके अलावा आपका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का, कि भाई इंडिया अगर यूएस के साथ कर सकता है तो हम रशिया के साथ क्यों नहीं कर सकते। तो इससे आपको एक मल्टीपल एडवांटेज मिल जाते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज आर ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी, आर डिप्लोमेटिक जो है हमारे एवेन्यूज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक मिडल ऑप्शन लेने के लिए, और चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर अपना जो है वो एक न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए, पाकिस्तान नीड्स टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। पाकिस्तान नीड्स टू एंगेज विद ऑल काइंड ऑफ कंट्रीज, बीट रशिया, चाइना, यूएस, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को लेके जाना है, एंड दैट इज वाई रशिया इज इम्पोर्टेंट। रिसेंट चेंजेस अब अगर हम देखें तो टिल्ट है इंडिया का यूएस की तरफ, जो कि रशिया को भी पसंद नहीं है कि यार ये तो मेरा बहुत ऑल वेदर फ्रेंड था, ये तो यूएस की तरफ जा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया इज क्लोजिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान। इसके अलावा पाक चाइना रिलेशंस ने भी एक रोल प्ले किया है कि भाई रशिया भी इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करे। इसके साथ साथ ईरान की प्रॉक्सिमिटी है, ईरान, चाइना, रशिया का एक अच्छा नेक्सस है। तो पाकिस्तान इज द नेबर ऑफ बोथ चाइना एंड रशिया। तो इस वजह से भी एक ये एक इम्पेटस प्रोवाइड करता पाकिस्तान को कि पाकिस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। तो ये हमने देखा कि किस वजह से जो चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स है पाकिस्तान को रशिया की तरफ लेके जा रहा है आगे। अब अगर हम देखें तो कौन से पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं जो कि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। पाकिस्तान का जो शिफ्ट है फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, तो ये पाकिस्तान को एक बड़ा इम्पेटस प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान प्रोवाइड्स द मोस्ट क्रिटिकल एक्सेस टू इट्स फ्लैगशिप सीपैक प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसको रशिया भी यूटिलाइज कर सकता है टू रीच टूवर्ड्स वार्म वाटर्स, और उसकी एक्सेस, उसकी जो इंटीग्रेशन चाहता है कि भाई मेरा रोल इंक्रीज हो ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो वो तब भी पॉसिबल है जब वो ग्लोबल इनिशिएटिव्स का पार्ट बनेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। फिर दूसरा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया एज वेल। इस वजह से नहीं कि सिर्फ वहां पे एंटी टेररिज्म है, बल्कि इस वजह से भी कि अगर अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो पूरा रीजन स्टेबल होगा, और रीजन स्टेबल होगा तो यह दोनों के लिए फायदा है, रशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। और ये पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा कि अगर अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर सकता है, एनर्जी रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स उधर जा सकती हैं, उधर के इंपोर्ट्स पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और पूरी दुनिया की तरफ इजिली मूव हो सकती हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। फिर स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन साउथ एशिया, पाकिस्तान डिफेंस नीड्स। अब M135 था, नॉट 36। M135 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने परचेज किया रशिया से। अब इंडिया जो है वो रिलायंस की तरफ जा रहा है, यूएस की तरफ। अब आप देखें कि पाकिस्तान को यूएस ने बहुत देर बाद F-16 जो है उसकी दूसरी किस्त के लिए कहा है कि चले हम आपको दे देंगे, जो 1991 में पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किए थे यूएस के साथ। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसने अगर इंडिया के साथ अपनी सिक्योरिटी को बैलेंस करने हैं, तो पाकिस्तान को एक अलहदा एक्टर की जरूरत है, और उसमें आपके पास रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे सामने आता है। और रशिया को भी एक मार्केट की जरूरत है, एक्सपोर्ट मार्केट की, आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट। जैसे मैंने पहले बताया कि रशिया अब सिर्फ वन कंट्री स्पेसिफिक नहीं, रीजन स्पेसिफिक फॉरेन पॉलिसी लेके आया है। कभी दोनों कंट्रीज आपस में मरते झगड़ते रहे, लेकिन मेरे से आर्म्स नहीं, ठीक है। ये यूएस की भी यही स्ट्रेटेजी है, उसकी जो एक वेपन्स लॉबी है। सिमिलर इज द केस विद रशिया। तो पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट उसको जो है प्रोवाइड कर सकता है रशिया को। फिर चेंजिंग करेक्टर ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। अब आपको मैंने हाइब्रिड वॉरफेयर के लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान इज वेरी ससेप्टेबल टू हाइब्रिड वॉरफेयर। और रशिया की जो एक एम्बेसडर हैं हमारे मुनीर अकरम, उनकी एक आर्टिकल उन्होंने लिखा कि गिरासिमिव डॉक्ट्रिन, इसके मुताबिक
रशिया जो है उसने क्रीमिया के अंदर एक हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो यूज किया। उसने कम्बिनेशन ऑफ नैरेटिव कंट्रोल किया, साइबर अटैक्स किए, अनोनिमस मिलिशियाज एंड इरेगुलर फोर्सेज उधर एस्टैब्लिश की, क्लैंडीसाइन सप्लाईज दी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, ठीक है, उसको एसिमेट्रिकल ग्रे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो मर्जी उसको कहें, लेकिन उसने थ्रू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मीन्स क्रीमिया के अंदर जाके उसको एनेक्स किया और अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल किया। तो पाकिस्तान जो है रशिया से इन चीजों में एक्सपर्टीज ले सकता है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एज वेल। एंड रशिया के लिए क्या है कि रशिया को एक नया पार्टनर मिल जाएगा जिसके साथ वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो जो ग्लोबल साउथ ग्लोबल सॉरी डेवलप कंट्रीज का, ग्लोबल नॉर्थ का बेसिकली एक एम है कि रशिया को आइसोलेट किया जाए, तो पाकिस्तान के फॉर्म में उसको एक और प्लेयर मिल सकता है जिससे वो अपना एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके अपनी ग्लोबल एक जो उसकी से है उसको एक्सपैंड कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी इकोनॉमिकली इश्यूज हो, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक हो, लेकिन मिलिटरीली मिलिट्री वाइज और न्यूक्लियर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा पाकिस्तान एनर्जी चैलेंज एंड न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप मेंबरशिप, अब दो पॉइंट्स इसमें एक साथ लिखती है मैंने। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान जिस तरह यूएस ने इंडिया को सिविल डील दी, और आप देखते हैं कि रिसेंटली अभी बात की गई कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया इज नाउ टेकिंग लीड इन टर्म ऑफ इट्स न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा है अब इंडिया के पास, पहले पाकिस्तान के पास ज्यादा होते थे। तो ये चीज एक बड़ी खतरनाक है हमारे लिए। अब इसके लिए हमें जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम शेयर कर सकें, इसकी इंपोर्ट कर सकें। आप ऐसी चीज नहीं है कि आपने बाहर से यूरेनियम इनरिच यूरेनियम चाहिए आप बाहर से जाके लें। फॉर दैट यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो उसका हम मेंबर अभी नहीं हैं। तो इसमें रशिया आपकी सपोर्ट कर रहा है, रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा है, अगेन द सेम थिंग के काउंटर करना चाह रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कि भाई तुम यूएस के पास जाओगे तो मैं पाकिस्तान को जो है वो एक्सपैंड कराऊंगा, पाकिस्तान को जो है मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगा। अब दूसरा जो इसमें पॉइंट बताया है पाकिस्तान एनर्जी चैलेंजेस। अब हमारे जो एनर्जी चैलेंजेस हैं, रिसेंटली आपने देखा कि चाइना सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया ऑयल एंड गैस का फ्रॉम रशिया। सिमिलर इज द केस विद इंडिया, इंडिया ने भी लास्ट ईयर रशिया से सबसे ज्यादा जो है वो इंपोर्ट की चीज, रीजन डिस्काउंटेड ऑयल। अब रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल क्यों दिया, उसकी क्या रीजन थी, यूरोपियन सैंक्शंस, यूरोपियन एम्बार्गो। सबसे ज्यादा रशिया एक्सपोर्ट करता था अपनी गैस को और फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं टू यूरोपियन यूनियन, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इसके ऊपर सैंक्शंस लग गए। अब रशिया को तो मार्केट चाहिए क्योंकि वो डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के रेवेन्यूज पे, तो उसको मार्केट मिल गई चाइना और इंडिया के फॉर्म में। अब चाइना और इंडिया क्यों उससे लेंगे, क्यों उससे अपनी सप्लाई इंपोर्ट ज्यादा करें, बाकी कंट्रीज से तो ले रहे हैं ऑलरेडी। अब उनको उसने रशिया ने इंसेंटिव दिया कि भाई तुम डिस्काउंटेड ऑयल ले लो। अब इनके पास रिफाइनरीज थी, रशिया का पहले भी ऑयल आता था तो उनके लिए इतना इशू नहीं हुआ, उन्होंने और ज्यादा इंपोर्ट किया और अपना जो है वो कंट्रोल की लोकल इन्फ्लेशन और अपनी पॉपुलेशन को एक ईज प्रोवाइड किया, एनर्जी चीप प्रोवाइड की, और इससे ग्लोबल कंपेटिटिव उनकी बढ़ती है अपनी प्रोडक्ट्स की और उनसे उनका ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर इंक्रीज होता है। तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन थी। अब पाकिस्तान के लिए मसला बना कि जी हम जाके उससे लेंगे या ना लें। अब अगर हम कहते हैं कि हम डिस्काउंटेड ऑयल ले रहे हैं तो आपकी जो रिफाइनरीज हैं उनके पास ये पोटेंशियल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि रशिया से आने वाला एक ऑयल उसको आप रिफाइन कर सकें, प्रोसेस कर सकें। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हुआ, बट हमने लास्ट ईयर इंपोर्ट की है ऑयल फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंटेड रेट, लेकिन इट्स नॉट एज पर द अदर कंट्रीज, और उसमें अभी भी हमें चैलेंजेस का सामना है। अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है रीजनल इंटीग्रेशन के फॉर्म में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड ग्रेटर यूरेशिया पार्टनरशिप। यूरोपियन यूनियन यूरेशियन इकोनॉमिक
यूनियन, ये है रशिया का एक ब्रेन चाइल्ड कि जी हम यूरेशियन कंट्रीज को, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनको मिला के एक फ्री ट्रेड जो है ना वो एक ब्लॉक बना सकें। जिस तरह आरसेप है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद आसियान कंट्रीज, और इसके साथ इसमें बाकी कंट्रीज हैं, जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना शामिल है। ठीक है, इसी तरह ये बनाना चाहता है यूनियन रशिया, और इसमें पाकिस्तान का एक अच्छा पोटेंशियल लाई करता है। इसके अलावा पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इससे रशिया के लिए भी बेनिफिट है कि पाकिस्तान को जो है ना वो एक अच्छा पार्टनर उसको बना सकता है। एंड्रयू कॉर्डिफ का मुताबिक पाकिस्तान एज द जिपर ऑफ पैन यूरेशियन इंटीग्रेशन रिफ्लेक्टिंग इट्स पिवटल रोल इन रीजनल कनेक्टिविटी। और पाकिस्तान के पास जो गवादर पोर्ट है, ये एक इन इस रीजनल का जो एक यूरोपियन यूनियन होगी, अगर ये रशिया कामयाब होता है बनाने में, तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो सकता है ग्वादर पोर्ट के थ्रू, और इन कंट्रीज को पाकिस्तान फायदा दे सकता है अपने ग्वादर पोर्ट के साथ। तो ये हमारा जो है पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस। अब चैलेंजेस कौन से हैं, पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस कौन से हैं? इतना कहना आसान नहीं है कि भाई ये हो गया तो हमारे रिलेशन पर अच्छे हो गए रशिया के साथ, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस लाए करते हैं, जिसको हम पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस कहते हैं। सबसे मेन चैलेंज इंडिया रशिया रिलेशनशिप। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएस के साथ मिल गया तो रशिया की वैल्यू खत्म हो गई है। अभी भी रशिया के मुताबिक जो इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया की फॉरेन पॉलिसी में, वो इंडिया है, और पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में लाए नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए चैलेंज है। रशिया स्केप्टिज्म अबाउट चाइना's growing influence in Central Asia and South Asia complicates its relation with पाकिस्तान एज वेल। दूसरा ये कि चाइना भी रशिया के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं है जैसे हमें लगते हैं, अभी भी इन दोनों के दरमियान भी कंपटीशन है। अब रशिया नहीं पसंद करेगा कि भाई चाइना जो है वो एक सेंट्रल एशिया की मार्केट को एक्सेस करे उससे, तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हर्ट होंगे। तो ये भी एक स्केप्टिज्म बैक साइड पे एग्जिस्ट करता है रशिया की साइड पे। दूसरा, रशिया's desire to maintain ties with India may hinder Pakistan's effort to establish cordial relations। एक इशू हमारा ये भी है। दूसरा इशू हमारा यूएस पाकिस्तान रिलेशन है। अब हम, आपको पता है कि यूएस कुछ थोड़ा सा ऑफर करते हैं तो हम साथ ही चले जाते हैं और बाकी सारे एंगेजमेंट को भूल जाते हैं। 1974-72 में हमने रशिया को विजिट किया यूएसएसआर, लेकिन जैसे ही 1979 का वाकया हुआ, हमने कहा ये हमारे लिए सिक्योरिटी खतरा है, चलो जी जस्ट बैंड वेगन हो जाए, जंप कर दिया हमने यूएस कैंप में। तो ये अभी भी स्केप्टिज्म से देखते हैं रशिया कि यार ये दोबारा ना कभी इस तरह हो जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया हो जाए। तो इस वजह से भी हमारा इन रिलेशन इतना एक फास्ट ट्रैक नहीं हो पा रहा। फिर पाकिस्तान रिलायंस ऑन चाइना एंड मिडिल ईस्ट। रशिया's व्यूज पाकिस्तान इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड आईएमएफ विद स्केप्टिज्म पोटेंशियली इंपैक्टिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट। यानी अब चाइना जितना अच्छा है उतना अच्छा है भी नहीं, क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा कि उसकी जो मार्केट है पाकिस्तान में वो रशिया ले जाए। ठीक है, या रशिया जो है जो चीज चाइना प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान को, रशिया प्रोवाइड करे। तो एक तो रीजन ये है जो कि इतनी बड़ी रीजन नहीं है, लेकिन दूसरी रीजन आईएमएफ है। पाकिस्तान ने अभी आईएमएफ के साथ प्रोग्राम किया और हमने कितनी चीजें सेक्रीफाइस की, अपनी सॉवरेनिटी सेक्रीफाइस की, अपने चाइना के साथ रिलेशंस को फर्दर डाउनग्रेड किया, उसके जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने रीशेड्यूल कर रहे हैं डेट को। तो ये चीज जो है वो एक वेस्टर्न प्रेशर है हम पे, और ये चीज रशिया के साथ भी जो भी हम प्रोजेक्ट्स करेंगे उसके अंदर भी नजर आएगी। तो ये एक और बड़ा चैलेंज है हमारे रिलेशनशिप के लिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सस्पिशियस ऑफ यूएस पाक रिलेशन रिवाइवल, वही चीज कि भाई दोबारा रिवाइव ना हो जाए रिलेशन। जैसे 1979 का कोई वाकया है, अगर कोई इस तरह का दोबारा वाकया हो जाता है तो रशिया और यूएस दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। इन दोनों की अगर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए तो पाकिस्तान तो सीधा सीधा यूएस का सपोर्ट देगा। ठीक है, फिर जियो पोलिटिकल लैंडस्केप। The broader geopolitical environment, including US influence in the region and India's alignment with the West, poses challenges to Pak-Russia relationship। यानी अब अगर आईएमएफ का इसमें रोल देखें, सारे इंटरकनेक्टेड हैं कि आईएमएफ इज बीइंग यूज्ड एज अ जियोपॉलिटिकल टूल। तो अगर जो रशिया की इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से अगर रशिया से हम कोई भी बार्टर ट्रेड के अलावा डायरेक्ट ट्रेड करते हैं तो वो भी यूएस के सैंक्शंस के अंदर आ जाएगी। अगर रशिया इन्वेस्टमेंट करता है हमारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट में, तो उसके ऊपर भी, जिस तरह हम ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं ले रहे, तो रशिया के साथ ये कैसे टॉलरेबल होगा यूएस के लिए, स्पेशली विद इट्स वॉर विद यूक्रेन। रशिया के ऊपर ज्यादा सैंक्शंस है, तो ये हमारे लिए एक दोबारा मेजर चैलेंज के तौर पर सामने आता है।
पाकिस्तान एलिज वेपन सेल्स टू यूक्रेन। अब इंटरसेप्ट और बीबीसी कहता है कि जी पाकिस्तान ने सेल की है, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ब्लैक मार्केट से हो गए, हमने डायरेक्ट सेल नहीं की। तो ये भी एक बेसिकली पॉइंट ऑफ कंसर्न है रशिया के लिए कि यार ये मैं इसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करूं, ये मेरे एनिमी को ही वो जो है ना वो आर्मामेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कंसर्न है। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। पाक रिलेशंस विद यूक्रेन भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान primarily यूज रशिया यूक्रेन टैंक्स सिंस 1997, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड हमारी यूक्रेन के साथ ज्यादा है। पाकिस्तान एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया एट यूएनजीए बट एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन। यानी हमने रशिया के अगेंस्ट तो वोट नहीं किया, लेकिन हमने कंसर्न रेज किया यूक्रेन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखें एलिगेशन ऑफ पाक सप्लाइंग स्मॉल आर्म्स टू यूक्रेन, वही चीज सामने आ जाती है। अब चैलेंजेस हैं हमारे ऑयल ट्रेड में। अब अगर हम रिलाय करें चीप ऑयल पे तो ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, बट वी कैन फेस हर्डल्स। हर्डल्स कौन सी आ सकती हैं? रिफाइनरी सिस्टम्स जो हैं हमारे वो मिडल ईस्ट क्रूड को रिफाइन कर सकते हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटी टू रिफाइन रशियन ऑयल, ठीक है। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है। एडिशनल कॉस्ट आ सकता है फ्रॉम लाइटरिंग ऑपरेशन इन ओमान एट $2-3 पर बैरल। यानी हम डायरेक्ट यूक्रेन रशिया से इंपोर्ट नहीं कर सके, वो आएगा मिडिल ईस्ट उतरेगा फिर आएगा, तो और एक्स्ट्रा उसका जो है ना हमारे पे बर्डन पड़ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान कैन ओनली इंपोर्ट 1 कार्गो शिपमेंट पर मंथ ड्यू टू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हमारी इतना रशिया के साथ अभी बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन जो चाइना और इंडिया का हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है रशिया के साथ उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है। तो इस वजह से इतना आसान नहीं है हमारे लिए रशिया से ट्रेड करना ऑयल की। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखें, जो रशिया के कंसर्न है उनको दूर करें कि नहीं भाई हम दोबारा यूएस का जो है ना वो आर्म नहीं बनेंगे, बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे तो हमारा रिलेशनशिप आपसे इंडिपेंडेंट रहेगा। और इसमें कोई भी हमारा अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप है वो आपसे जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो इससे हमारे पास एक होप है कि हम बेहतर कर सकते हैं टाइस। वी कैन एक्टिवली परस्यू वेवर फॉर रशियन इन्वेस्टमेंट, जिस तरह इंडिया ने ली, ठीक है, या अभी हम बार्टर ट्रेड है तो ऑल्टरनेट ले सकते हैं कि किस तरह हम रशिया के साथ ट्रेड करें। ब्रिक्स और एससीओ फोरम्स, रशिया कहता है कि आपको ब्रिक्स में हम सपोर्ट करेंगे, अभी एससीओ फोरम होने जा रहा है, तो इसमें यूज करके हम अपना डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ा सकते हैं और रशिया के साथ ताल्लुकात एक्सप्लोर कर सकते हैं। किस फील्ड में कर सकते हैं? यहाँ पे कर सकते हैं रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं। 3 ऑप्शन हमें हैं हमारे साथ कि कोयटा ताफ्तान रेल लिंक को अपग्रेड किया जाए, जून के अंदर ये साइन हुआ। सेकंड है कोहाट कराची रेल लिंक दैट विल कनेक्ट सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स बाय अफगानिस्तान, इसको बेहतर किया जाए। या माइनलिंक एक्सप्रेस जो रिको डिको गवादर से कनेक्ट करे, एक्सेस एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अजरबैजान एंड रशिया। यानी हम रशिया के साथ रेल कनेक्टिविटी में फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी और इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, और इसके लिए SIFC का प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। एंड देन वी कैन ओपन अप रशियन मार्केट्स फॉर पाक एक्सपोर्ट्स, और इसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन को फोस्टर करना चाहिए। और इसके लिए जो हमने रिसेंट अभी बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट किया है, अब दिस कैन प्रूव अ गेम चेंजर अगर ये बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो, और अगर स्टेट्स दोनों स्टेट्स एक्टिवली परस्यू करें इनके एक्सपोर्ट्स। तो हम जो हमारा एक्सपोर्ट्स है, किस चीज के एक्सपोर्ट्स? आपके गारमेंट्स की है, इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, आपके लेदर प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा मेडिसिन में आपका फार्मेसी में एक अच्छा पोटेंशियल लाई करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर चीजें तो नहीं दे सकते रशिया को, ऑलरेडी रशिया एक फूड बास्केट है। तो ये चीजें आपकी जो हैं बेहतर हो सकती हैं रशिया के साथ, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये अभी रिसेंट एग्रीमेंट था, ठीक है, जिसमें वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, IT के साथ कोलैबोरेट करेगा। अदर सेक्टर्स जिसमें लेदर एंड टेक्सटाइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में हम एक पोटेंशियल मार्केट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ना वो अभी रिसेंट हुई है, एंड दैट्स ऑल। और ये हमने पूरा रिलेशनशिप स्टडी कर लिया है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। समझ आ गई है इसके इस रिलेशनशिप की?
जी, यू मे आस्क योर क्वेश्चन एहसन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क के आपने जो फी फॉरवर्ड वगैरह मेंशन किए, इसमें सर अगर हम मतलब कैन वी ऑफर देम एक्सेस टू वार्म वाटर, हम ये कर सकते हैं यानी मतलब एक किसका, और दूसरा सर could you please like explain barter trade? I think I miss it out. I was like थोड़ा सा मैं zone out हो गया था during lecture. Could you please explain that? सॉरी, किसका दोबारा पूछें क्वेश्चन, मुझे आपका थोड़ा सा नहीं समझ आया। कैन वी ऑफर देम एक्सेस टू वार्म वाटर? यस, उसमें जैसे बात की गवादर पोर्ट की, या हमने बात की इसकी सीपैक की, तो दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है। इम्प्लीकेशन इसके डेफिनेटली सैंक्शंस की फॉर्म में या हो सकते हैं, बट सैंक्शन जिस तरह नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, मल्टीलेटरल फोरम से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, एससीओ के फोरम से, तो या मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की जा सकती है, जैसे सीपैक के अंदर इंक्लूड किया जाए, तो चाइना के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाए, सो दैट विल डेफिनेटली बाईपास इंटरनेशनल सैंक्शन ऑन अस। अच्छा, समवन मेंशन के जी प्री पार्टीशन टॉपिक्स बड़े मुश्किल लगते हैं हमें, तो यार प्री पार्टीशन वाकई लेंथी है, इस वजह से अगर मैं सारे लेक्चर प्री पार्टीशन में देता तो पोस्ट पार्टीशन हम कर ही ना सकते। तो इसमें तरीका ये है कि आप पास्ट पेपर को देख लें, कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी करता है, कभी वो कायदे आजम पे कर लेता है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे कर लेता है, ऐसे सैयद अहमद खान पे कर लेता है। तो एक दफा 2 दिन लगा लें और इसको कवर कर लें, याद कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। Thank you, Akasha, for your warm reviews and I can say encouraging reviews। आप मुझे ये टेक्स्ट भी करते हैं सो दैट आई कैन टेक स्क्रीनशॉट, लोगों को जलाऊंगा मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँ। नॉट नॉट जलाना लोगों को, बेसिकली क्या करूंगा मैं, जो है ना वो एक अच्छे व्यूज दिखा के उनको कहूंगा कि मेरे नेक्स्ट सेशन में, यही हमारा तरीका वारदात है, बट इट्स सिंपली अ जोक। डेफिनेटली आई वांट टू शेयर द रिव्यूज एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। तो जिसके भी तो कोई रिव्यूज, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा सेशन, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी रिव्यूज दे मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि क्या चीज अच्छी नहीं लगी, उसको हम इम्प्रूव करें नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो कोई भी रिव्यूज हैं किसी भी किस्म के आप दे दें। अच्छा, पांच पेपर एनालिसिस की डेफिनेटली क्लास है, उसमें मैंने आपका पेपर भी डिस्कस करने हैं और पांच पेपर भी डिस्कस करूंगा, तो ये मैं क्लास रखूंगा नेक्स्ट वीक में और आपको मैं शेयर कर दूंगा। जुडिशियल एक्टिविज्म का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ हुआ? What? मैं तो किया था कल लेक्चर अपलोड, लेट मी चेक। अगर नहीं हुआ तो आई विल चेक इट एंड विल अपलोड इट, अगर ये अपलोड नहीं हुआ। ओके, ये लेक्चर अपलोड नहीं हुआ हुआ, फाइन, माय मिस्टेक, इसको मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है ऐसे एन आउटलाइन पर आने का या उसको वैल्यूएट करने का। मेरे जो बाल बचते हैं, आप चाहते हैं वो भी उड़ जाएं? एक तो सीएसएस करते करते उड़ गए हैं, बाकी फिर ये चेक करते करते ऐसे का करते करते उड़ जाएंगे। अच्छा, रिव्यूज आपने व्हाट्सएप पे देने हैं, इधर ना दें, इधर मैं कैसे सेव करूंगा, ये तो चैट खत्म हो जाएगी। रिकमेंडेशन मैं दूंगा एवेल्युएशन के लिए, और वो हैं सर इकराम,
उनसे आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने उनका शेयर भी किया था ग्रुप में, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, किसने कहा जनरल एबिलिटी का बता दें? जनरल एबिलिटी यार सर रमजान कराते हैं, बड़ा अच्छा कराते हैं। और वो उनसे कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा तो बैकग्राउंड ही यही था, इंजीनियरिंग का। और मैं ऑनलाइन ट्यूशंस भी देता था इसकी, मैथ की, साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो मेरे लिए तो बड़ा हलवा था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ सके अच्छे। पहले अटेम्प्ट में 58 थे, दूसरे में 70 थे। ज्यादा होने चाहिए थे, 80 तक होने चाहिए थे। तो मुझे हमेशा दुख रहेगा इसका। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं? पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करें, या बिल्कुल जो जीएसए का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस, वो नेट से निकाल के समझ लें। और मैथ एबिलिटी करने के लिए सारा पोर्शन करें, कोई भी चीज मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस में एबिलिटी। आप लोग करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जो कि जरूरी भी है, लगाना भी चाहिए। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि आपको बैठे बिठाए नंबर दे रहा है। लाइक उसमें आपको न्यू डेवलपमेंट नहीं याद करने की जरूरत, उसमें कोई डेट्स रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ समझने की जरूरत है और लिख के आना है, और आपको नंबर 80+ नंबर दे देता है। लाइक अगर जीएसए में आपका 50 है, तो इसमें आपकी गलती है। अगर करंट अफेयर में 50 है, तो इट मीन्स यू डिड गुड, बहुत अच्छे नंबर है। लेकिन अगर जीएसए में आपका 80 मार्क्स है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें अगर 50 मार्क्स हैं, तो आपकी गलती है, आपने अपने साथ ज्यादती की है। जीएसए के अंदर मिनिमम 70 मार्क्स तो होने ही चाहिए, और बड़ा इजीली आ जाते हैं। आप सिर्फ 1-2 हफ्ते पूरा दिल लगा के जनरल साइंस एंड एबिलिटी को दे दें, और आपके इसमें इतने नंबर कंफर्म आ जाएंगे। इसमें मैथ की बड़ी चीजें होती हैं, आप प्रैक्टिस करें। जो जिनको मैथ नहीं आता इसको समझे, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर, पाक अफेयर का नहीं पता आपको एग्जामिनर कब टारगेट कर दे। अब 2 साल पहले भी उसने जो है पाक अफेयर में किसी को 2 नंबर दिए हैं, किसी को 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। इतने तो उनके एमसीक्यूज से भी ज्यादा नंबर थे। मतलब उनके एमसीक्यूज इससे ज्यादा ठीक थे, और उनको नंबर कम मिले हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, माइनस का फिल्टर लगाया जाता है और आपके नंबर चले जाते हैं। सुनने में तो यही आया है, अब मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे भाई, करंट अफेयर में वो माइनस लगा दे, पाक अफेयर में लगा दे, दोनों में लगा दे, तो एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना कि 120 नंबर से प्लस आए। ठीक है, वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। वो आपको एक तो प्रोटेक्ट भी करता है इन तीनों सब्जेक्ट्स को, और दूसरा वो आपको एक एक्स्ट्रा माइल लेके जाता है आपकी एलोकेशन होने में, और अच्छा ग्रुप आने में, और एलोकेशन ना होने में। जनरल साइंस एंड एबिलिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसको जरा आप सीरियसली लीजिएगा। मैथ पोर्शन, साइंस की बुक लें, मैथ की 7th और 8th क्लास की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको प्रैक्टिस करें। गुलाम फातिमा, मैं इंट्रोडक्शन पे क्लास रखूंगा, अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे का बड़ा लंबा हो जाएगा फिर। जी, और कोई क्वेश्चन हो किसी का, पूछ ले। अच्छा, मैंने आपके पेपर चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा रह गए हैं, वो इस वीक मिल जाएंगे। क्योंकि अभी जब मैं क्लास पर आ रहा होता हूँ ना, तो पूरा दिन जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, तो 3-4 घंटे अगर मेरे पास बचते हैं क्लास पर आके या ऑफिस से आके, तो मैं लेक्चर अपडेट करता रहता हूँ।
अब क्योंकि अगर मैंने पाक अफेयर का भी पढ़ाना है, करंट अफेयर का भी, और मैंने पहले भी लेक्चर तैयार किए हैं, तो मैं फिर भी उसको अपडेट कर लेता हूँ। तो इस वजह से मुझे